Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So tough days are ahead. The month of October, November, December, many exams and lot of confusion in mind of candidates what to do, what not to do. On this channel, I am advising you the right strategy to handle such type of situations. When there are multiple exams in offering, we have to divide our time in such a fashion that we can handle all the exams simultaneously. So now after completion of first phase of IBPS RRB office assistant and officer exam, now our focus is shifting towards IBPS PO examination. And next 2 weeks its prelim will also be over. Side by side we have to focus on IBPS RRB officer as well as IBPS RRB clerk main also. So daily I will be uploading 2 sets of videos. One video is meant for candidates whose examination falls in that week. And second set of video will be for the candidates whose exam falls after a week. So this video is meant for the candidates. Those have to appear for IBPS PO Prim on this Saturday, that is 3rd October. All other candidates whose exam is on 10th or 11th, they will follow the daily schedule of second video that I am going to post after this video. So this video is meant for IBPS PO Prim candidates appearing on 3rd October. So today you will attempt another mock test because IBPS PO is a tough competition as compared to RRB on account of lesser number of vacancies, and we have to be very careful in clearing the examination. So you will attempt one mock test from the link that I have given to you. This is a link of a very good mock test which helps you in identification of your weak areas and suggest how you can improve it. Thousands of our subscribers have already using it and finding it useful. So if you have not subscribed this mock test till now, subscribe it today. After attempting the mock test, go to the solution part. Then analysis. Now you have come to know where you are lacking. Note down these topics in your diary. Now follow your timetable. 1 hour you spend for English, half an hour rest, 1 hour on quant, half an hour rest, 1 hour on reasoning, half an hour rest. Then again 1 hour on English, half an hour rest, 1 hour on quant, half an hour rest, 1 hour on reasoning, half an hour rest. If still time is available, repeat this schedule. So if we will focus in a systematic manner, we will definitely clear the examination and have a good score. So identification of weakness, focusing our study only on weak areas during these final days is the key to success. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट और IBPS RRB ऑफिसर का फर्स्ट लेग खत्म हो चुका है, पर ये जो महीना है हमारा, जो अक्टूबर का आ रहा है, नवंबर का आ रहा है, दिसंबर का आ रहा है, इसमें मल्टीपल एग्जाम्स हैं. तो इसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कैसे सारे एग्जाम्स को एक साथ लेके चलें. तो इसी के लिए हमने आपको 2 सेट ऑफ वीडियोस डेली डाल रहे हैं.
जिससे आपका फोकस रहे कि अभी मुझे कौन से एग्जाम को फोकस करना है और फिर कौन से एग्जाम को फोकस करना है। जिन कैंडिडेट्स का 3 अक्टूबर को IBPS PO का प्रीम है, वो इस वीडियो में बताए गए टाइम शेड्यूल को फॉलो करेंगे। जिन लोगों का IBPS PO 10 को या 11 तारीख को है, वो जो सेकंड वीडियो हम पोस्ट करेंगे उसके टाइम शेड्यूल को फॉलो करेंगे, क्योंकि उस वीडियो में हम वो शेड्यूल लेके चल रहे हैं जो मल्टीपल एग्जाम को फोकस करेगा, और इस वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं खाली एक एग्जाम को, वो है हमारा IBPS PO प्रीम। तो अगर आपका 3 अक्टूबर को एग्जाम है तो जो मैं आपको टाइम शेड्यूल और एक्टिविटीज बता रहा हूँ वो आपको आज करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है 2020 प्रीम का लिंक से, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दिया। ये बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट है जो मैंने आपको सजेस्ट किया है। हजारों हमारे सब्सक्राइबर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको एडवांटेज हुआ है, और आपने देखा होगा हजारों की तादाद में हमारे सब्सक्राइबर पिछली सिलेक्शंस में सिलेक्शन लेके जॉब ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन करने वाले हैं। तो यदि आप एक अच्छा मॉक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको उससे ये सुविधा मिलती है कि आपको अपनी कमियां पता लगती हैं और फिर आपने अपनी कमियों पे काम करना है। तो जब आपने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, इसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखेंगे, फिर आप इसका एनालिसिस देखेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पाए। ये आपका वीक एरिया है, इस एरिया को आपने कॉपी पे नोट करना है, डायरी पे नोट करना है। अब आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। 1 घंटा इंग्लिश, हाफ एन आवर रेस्ट, 1 घंटा क्वांट, हाफ एन आवर रेस्ट, 1 घंटा रीजनिंग, हाफ एन आवर रेस्ट, फिर 1 घंटा इंग्लिश, हाफ एन आवर रेस्ट, 1 घंटा क्वांट, हाफ एन आवर रेस्ट, 1 घंटा रीजनिंग, हाफ एन आवर रेस्ट। और अगर अभी भी आपके पास टाइम बच गया तो इसी शेड्यूल को आप रिपीट करेंगे। तो जो इंग्लिश का हमारा आवर है उसमें हमने क्या करना है कि जो इंग्लिश में हमारी कमजोरी है वो पर्टिकुलर चैप्टर हमने इंग्लिश ग्रामर बुक से पढ़नी है। फिर इसी तरह क्वांट में जिस तरह के क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाए, मान लो आपको लगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, स्ट्रीम का क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, मिक्सचर का क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तो रिस्पेक्टिव टॉपिक आपने स्कूल लेवल की किताब से पढ़ना है। फिर आप रीजनिंग पे आ गए। अब आपको पता है किस तरह की रीजनिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, वो रीजनिंग आप उसमें करें। तो जब आप सिस्टमेटिक वे से तैयारी करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे डेली आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, और यही इम्प्रूवमेंट आपको सक्सेस दिलाएगी। So God bless you all for your success for Saturday examination.